Welcome, my dear students. With today's session, we are starting arithmetic for CAT 2024. And we'll be starting arithmetic with the topic of ratio, proportion, and variation. Now, this is a very important topic. Basically, ratio and percentage, these are the two topics जो कि बिल्कुल बेसिक फॉर्म करते हैं फॉर अरिथमेटिक एंड फॉर DI एज वेल. तो DI के क्वेश्चंस में भी बहुत रेलेवेंस है रेशियो प्रपोर्शन का, और अरिथमेटिक में तो है ही. So we'll be starting with ratio. In this session, we'll be doing some basics of ratio, and then we'll be doing some practice questions. So let us start. And if you've not already subscribed to the YouTube channel, you can subscribe to the YouTube channel and share this with others. You can also join the Telegram channel for the content PDFs, and the channel is Mathological. Okay, there is already a Telegram group. That group is CAT-ZAT MBA. So if you are already part of that group, then that is good. But apart from that, I have made a Telegram channel as well, that is Mathological. So you can join that as well for regular updates and free content. So what is a ratio? Ratio is basically a way to compare two quantities. For example, representation ratio is A upon B, which can also be written as A semicolon B, and this is read as A is to B. ठीक है, so A divided by B fraction के रूप में भी लिख सकते हैं, and we can also represent this as A is to B, A semicolon B. Both mean one and the same thing. Now, for example, we've been given a ratio A by B is equal to 3 by 4. So here both representations, both values 3 and 4, both are integers. Okay, so that is possible that both values, both A and B, can be integer. But similarly, they can also be decimal. For example, we can also write this as 2.4 divided by 3.2. If this is written somewhere in a question, then that is also perfectly fine. So fraction में भी हो सकता है. Mostly it will be in the integers. अगर नहीं होगा integers में, then we'll be converting it into integers. But otherwise, it can also be in fraction. So fraction में देख के भी बिल्कुल भी घबराना नहीं है. ठीक है? So A by B can be in both these formats. Now you can also recall from ratio rational numbers. And rational numbers are those numbers which can be represented in the form of a ratio P by Q, where Q is not equal to 0, isn't it so? ठीक है, बाकी जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यू कैन ऑल्सो कनेक्ट दीज थिंग्स. नाउ देयर आर टू थिंग्स विच वी शुड कनेक्ट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ रेशियो एंड रेट. What are the similarities and what are the differences between these two? For example, whenever we are talking about ratio, let us say we are saying 3 by 4, that is a ratio. 3 by 1 is also a ratio. Both are ratios. Okay, but ratio is a dimensionless quantity. What do we mean by dimensionless? That both 3 and 4, these will be numbers, or these will be in the same units. For example, we can compare two speed values, S1 upon S2. So this is a ratio. Okay, S1 upon S2. Let us say S1 है हमारा 40 km/h and S2 is 60 km/h. So we can say that the ratio of speeds is 2 by 3. 2 by 3. In comparison, rate क्या है? Rate also includes a ratio. For example, if we are saying that speed of a vehicle is 40 km/h, then what we imply by that? That it travels 40 kilometers in 1 hour. So this 40 by 1 is nothing but a ratio. ये तो ratio ही है. But this kilometer/h makes it a quantity with dimension, and that is why speed or rate in general includes a ratio, but this is not precisely a ratio. This is a rate. ठीक है, तो रेशियो रेट में एक बेसिक सा डिफरेंस है. रेशियो हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में कई जगह यूज आएगा. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ बैंकिंग यू माइट हैव हर्ड ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, द अमाउंट दैट द बैंक्स हैव टू बी केप्ट, हैव टू कीप इन द RBI.
ठीक है, एज रिजर्व्स। ओके, दैट इज कैश रिजर्व, हमारा वो कंसर्न नहीं है, बट दिस इज द बेसिक अबाउट रेशियो। ओके, so now let us take an example. Let us say rupees 84 is distributed between Aman and Baman, and Aman received rupees 40 and Baman received rupees 44. So rupees 84 is distributed between two persons, Aman and Baman, and Aman is receiving rupees 40 while Baman is receiving rupees 44. So if we take the ratio of these two values, अमन और बमन का अमाउंट का रेशियो क्या होगा? दैट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 44, which can be further simplified to 10 by 11, or we can also say that amount with Aman and Baman is in the ratio 10:11. Clear? Okay. अच्छा, we can also say 10:11 तो है ही है. Let us say हम multiply कर दे दोनों जगह पे 2, so we can say that this is also in the ratio 20:22. That is also correct. No problem with that. तो अगर 20:22 लिखा है तो भी करेक्ट है, 40:44 लिखा है तब भी करेक्ट है, और अगर उसका डबल भी लिखा हुआ है, लेट अस से 80:88 भी लिखा है तब भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी वैल्यूज एक ही बात है, बट दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड रेशियो, दिस इज द सिंप्लीफाइड रेशियो। ओके, नाउ किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है दैट हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो गिवन हो। फॉर एग्जांपल, लेट अस से वी बीन गिवन कि अमाउंट विद टू पर्सन्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 10:11, ये और भी दो पर्सन है और उनके बीच का जो अमाउंट है दैट इज इन द रेशियो 10:11, और क्वेश्चन अगर हमसे पूछे कि व्हाट कैन बी अ पॉसिबल वैल्यू, व्हाट कैन बी अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अमाउंट्स विद ए एंड बी, ओके, विद ए एंड बी, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? वी कैन, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ए के पास 10 रुपीज हो, बी के पास 11 रुपीज हो, दैट इज पॉसिबल, या ऐसा भी हो सकता है ए के पास 100 रुपीज हो, बी के पास 110 रुपीज हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, और A can have 20 rupees, which is 10 into 2, and B can have 11 into 2, 22 rupees. Similarly, A can have 1000 rupees, B can have 11,000 rupees. So 1000 1100 होगा, 1100 rupees. Yeah, so there can be infinitely many possibilities. अगर हमें सिर्फ रेशियो गिवन है, if only the ratio value is given, then there can be infinitely many possibilities. तो वी नीड एटलीस्ट वन मोर डेटा, कम से कम एक डेटा हमें और चाहिए, सो दैट हम स्पेसिफिकली पता लगा सकें कि क्या वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि हमें रेशियो गिवन हो और डिफरेंस भी गिवन हो। लेट अस से क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी हैव अमाउंट्स इन द रेशियो 10:11 एंड डिफरेंस ऑफ अमाउंट with A and B, and that is equal to ₹4. Difference of amount is ₹4. तो 10:11 में हमारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिफरेंस ऑफ अमाउंट गिवन है हमें ₹4। अब कन्वेंशनली इस क्वेश्चन को करते हैं तो कैसे करते हैं? स्कूल में किया तो कैसे किया? स्कूल में हम कैसे करते थे कि लेट अस अज्यूम कि A के पास अमाउंट है 10x एंड अमाउंट विद B इज 11x, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस विल बी 11x माइनस 10x एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, एंड इफ x इज इक्वल टू 4 देन नाउ वी नो कि क्या वैल्यूज आने वाली है। इफ x इज इक्वल टू 4, द अमाउंट विद a इज इक्वल टू 10x एंड हेंस दैट विल बी 10 into 4 which is equal to 40 rupees, and amount with b is 11x, so that will be 11 into 4 which is 44 rupees. So these will be the values. बट अभी हम इस क्वेश्चन को या अपने क्वेश्चंस को इस अप्रोच से बिल्कुल भी नहीं करने वाले, ठीक है। हम इन जनरल क्या करेंगे, वी विल नॉट बी यूजिंग अननोन और द वेरिएबल एक्स। स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, 10 यूनिट्स इज द अमाउंट विद ए, 11 यूनिट्स इज द अमाउंट विद बी। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बिटवीन 10 यूनिट एंड 11 यूनिट इज 1 यूनिट। So that 1 unit, that difference is given to us कि 1 unit is equal to 4 rupees, and if 1 unit is equal to 4 rupees तो 10 unit आ जाएगा 10 into 4 which is 40 rupees, और 11 unit आ जाएगा 11 into 4 which is 44 rupees। सम पूछा होता तो 10 plus 11 21 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लेते, 21 into 4 84 रुपीज। क्लियर है? अगर हमें सम पूछा होता तो स्ट्रेट अवे हम क्या करते हैं, 21 रुपीज 21 यूनिट्स टोटल वैल्यू है और दैट मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट विल बी 84 रुपीज। फिर हम ए और बी का इंडिविजुअल अमाउंट नहीं निकालते अगर हमसे सम पूछा होता तो, अगर इंडिविजुअल अमाउंट पूछे तो इंडिविजुअल अमाउंट निकालेंगे। इज दैट क्लियर?
ठीक है, बेसिक बेसिक सिंपल बातें समझते हुए चल रहे हैं, सो दैट आगे तुमको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कहीं पे भी फिर भी डाउट आता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। क्लियर? तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से देयर आर 240 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल एंड रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:5। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हैं 240 इन द स्कूल एंड रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स is 3:5. So what does that mean? If there are 3 boys, then there are 5 girls. Ratio का यही मतलब तो हुआ कि if there are 3 boys, then there are 5 girls. Or for every 3 boys, there are 5 girls. We can also say that for every 3 boys, there are 5 girls. This can also be said in vice versa, which implies that for every 5 girls, there are 3 boys. ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या वैल्यू पता है यहाँ पे, we know कि there are 240 students, so that is the information that we know. And these values 3 and 5, these are in the ratio. Let us say boys are 3 unit, girls are 5 unit. ठीक है, boys are 3 unit, girls are 5 unit. टोटल मिला के कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 3 + 5, 8 units. And this 8 units is equal to 240. So if 8 units is equal to 240, 1 unit की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 unit will be 240 divided by 8, which is equal to 30 students. तो बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज विल बी 3 यूनिट्स, यानी कि 3 × 30, दैट इज 90, एंड गर्ल्स विल बी 5 × 30, दैट इज 150. So 90 and 150, this will be the actual value of students in the class, in the school. Is that clear? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. तो इफ a is to b is given as 3/4, तो अगर a और b का रेशियो गिवन है 3/4 एंड b is to c is given as 5/7, तो हमें यहाँ पे दो रेशियो की वैल्यूज गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि a is to b is to c की वैल्यू क्या होगी. a is to b is 3:4 एंड b is to c is 5:7, और हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? a is to b is to c. तो what we will do, we'll write the ratio values. ठीक है, 3 a और b के नीचे लिखा 3 and 4, फिर b और c के नीचे लिखेंगे 5 and 7. बट द प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम यह है कि b की वैल्यू फर्स्ट वाले रेशियो में है 4 एंड इन द सेकंड रेशियो द वैल्यू इज 5. नाउ ऑलवेज इन होल ऑफ मैथमेटिक्स और इन जनरल, इनकंपेरेबल्स कैन नेवर बी कंपेयर्ड. जो भी वैल्यूज हमारी इनकंपेरेबल होंगी उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते. तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा, इफ इनकंपेरेबल वैल्यूज आर गिवन देन वी हैव टू मेक देम कंपेरेबल फर्स्ट. सबसे पहले उनको कंपेरेबल बनाएंगे, यानी कि b की वैल्यू 4 और 5 अलग अलग डिफरेंट नहीं होना चाहिए, बोथ वैल्यू शुड बी सेम. तो उनको सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम सेम करेंगे, उनको सेम करेंगे. और क्लियरली 4 और 5 का एलसीएम क्या आ रहा है? 20 आ रहा है. तो एक तरीका ये हो सकता है, या तो एलसीएम लेके कर दो, या स्ट्रेट अवे देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो जहां 4 है वहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और जहां पे 5 है वहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो. तो दैट वे a की वैल्यू क्या आ जाएगा? a विल बी 3 × 5 विच इज इक्वल टू 15, b विल बी 4 × 5 विच इज 20, एंड c विल बी 7 × 4 विच इज इक्वल टू 28. तो रेशियो आ जाएगा हमारा 15:20:28. रेशियो ऑफ a, b एंड c विल बी इक्वल टू 15:20:28. ये तो हो गया हमारा एक अप्रोच. इसी अप्रोच को थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो दैट हम और बेटर तरीके से इस चीज को अप्लाई कर सकें. तो वील बी यूजिंग फिल द एडजेसेंट मेथड. ठीक है, एडजेसेंट वैल्यूज को फिल करके हम अपना रेशियो निकालेंगे. ठीक है, और फिर हम एक बार फ्रैक्शन से भी देखेंगे इस बात को, सो दैट तुम जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरह से करना शुरू कर दो, अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. और मल्टीपल तरीकों से करोगे तो भी बेहतर है, बढ़िया है. ठीक है, बात एक ही है बट देखने का तरीका अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल हमें रेशियो गिवन है a और b का 3:4 का, और b और c का रेशियो है 5:7. तो दिस स्पेस इज ब्लैंक एंड दिस स्पेस इज ब्लैंक. तो इस स्पेस के एडजेसेंट में वैल्यू क्या है? 4 है, सो वील फिल 4 हियर. सिमिलरली एडजेसेंट टू दिस स्पेस वैल्यू इज 5, तो हम यहां क्या करेंगे? वील बी फिलिंग 5 हियर. अब स्ट्रेट अवे क्या करोगे? a के नीचे दो वैल्यूज है, 3 × 5 15 आ गया, 4 × 5 20 आ गया, और 4 × 7 दैट इज 28. तो रेशियो आ गया 15:20:28. क्लियर? ओके, ठीक है. तो दिस इज द अदर मेथड. तुमको जो मेथड कंफर्टेबल हो उससे अप्लाई करो, बट दिस इज स्लाइटली बेटर,
स्लाइटली ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे जब वैल्यूज हमारा, जब 2 रेशियोज है तब तो किसी भी तरह से करो, बट जब 2 से ज़्यादा रेशियोज है, 3 रेशियोज, 4 रेशियोज, 5 रेशियोज रहेंगे, तो डेफिनेटली दिस मेथड विल बी मच मोर कन्वीनियंट. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. अच्छा, पहले ये क्वेश्चन और कर लेते हैं कि इफ a is to b is equal to 3 and 4, 3 divided by 4 and b is to c is equal to 5 by 7, which we already find out. तो a is to b is to c हमारा ऑलरेडी आ गया है. क्या वैल्यू आई है? That value is 15 is to 20 is to 28. Okay, and we need to find out a plus b is to c. अब क्योंकि a is to b is to c हम निकाल चुके हैं, तो a plus b is to c is not a problem, easy है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. a plus b by c क्या आ जाएगा? That will be equal to a plus b 15 plus 20 which is 35 and that divided by 28 which will be 5 by 4. And similarly c minus a by b that will be equal to 28 minus 20 minus a है 28 minus 15 divided by 20, so that will be 13 by 20. so ये दोनों वैल्यूज हमारी रेशियोज की आ गई. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, हमने स्ट्रेट अवे क्या किया, रेशियो से वैल्यूज ले लिया, बट इन जनरल यहाँ पे समझना क्या है कि अगर हमारा रेशियो ये आया 15:20:28, सो दैट इंप्लाइज कि हम कह सकते हैं दैट a विल बी इक्वल टू 15 टाइम्स सम कांस्टेंट k, b विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स सम कांस्टेंट k एंड c विल बी इक्वल टू 28 टाइम्स सम कांस्टेंट k. नाउ सिंस a प्लस b बाई c, a और b तो सेम यूनिट्स के हैं, सी भी सेम यूनिट का, जब तुम a प्लस बी डिवाइड बाई सी करोगे तो ये हमारा रेशियो में आने वाला है, कोई डायमेंशन तो नहीं आएगी यहाँ पे, यानी कि k तो नहीं बच जाएगा, नहीं बचेगा. बेसिकली जैसे ही तुम a प्लस बी बाई सी लिखोगे तो दिस विल बी 15k प्लस 28k, 20k दैट डिवाइडेड बाई 28k, so दिस विल बी 35k बाई 28k, यानी k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, so दिस विल बी 5 by 4. देयर विल बी नो डायमेंशन, सो नो प्रॉब्लम इज देयर. लेट अस से हमें यहाँ पे क्वेश्चन में होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर क्या होगा. उस केस में तुम्हें समझना चाहिए था कि a प्लस बी में तो k आएगा बट c स्क्वायर में k स्क्वायर आएगा, तो एक k हमारा बच जाने वाला है. ठीक है, a प्लस बी में हमें k मिलेगा, दिस विल बी 35k, बट c स्क्वायर में हमें k स्क्वायर मिलेगा 28k का होल स्क्वायर. ठीक है, सो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे एक के बच जाने वाला है 35 डिवाइडेड बाई 28 का स्क्वायर एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई के. अब ये जो एक्स्ट्रा के बचने वाला है, इस के का वैल्यू हमें नहीं पता है, के कैन बी एनी वैल्यू, क्योंकि हमें रेशियो पता है यहाँ पे, बट वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, ए बी एंड सी हमारे कोई भी वैल्यू हो सकते हैं. दे कैन बी 15, 20 एंड 28 और दे कैन बी 30, 40 एंड 56 और दे कैन बी 60, 80 एंड 112. तो कोई भी वैल्यू हो सकता है ए बी सी का, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, यानी कि के की वैल्यू हमें नहीं पता है, के इज अ वेरिएबल अल्टीमेटली. ठीक है, सो दैट इज वाई यहां पे आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. दिस रेशियो वी कैन नॉट फाइंड आउट. ठीक है, अब इंस्टेड अगर हमें ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दिया होता तो ऊपर भी के स्क्वायर आएगा, नीचे भी के स्क्वायर आएगा, तो यहां पे हम रेशियो फाइंड आउट कर देंगे और स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 28 का स्क्वायर. तो जहां पे भी डायमेंशन सेम है, जहां पे कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में के का पावर सेम आने वाला है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां स्ट्रेट अवे हम वैल्यू रख सकते हैं, बट जहां पे पावर डिफरेंट है वहां पे हम वैल्यूज रख के नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वहां पे आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो ये चीजें ध्यान रखनी है. ठीक है, कि हमें ये जरूर ध्यान देना है कि क्या डायमेंशन सेम है, क्या क्वांटिटी को रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और के की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर के की जरूरत पड़ेगी देन के का वैल्यू इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन दैट केस अगर के की वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो वी कैन नॉट डिटरमाइन द सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? यहाँ तो दोनों वैल्यूज हमें मिल जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बात समझ में आनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट, अगर हमें 4 रेशियोज गिवन है लेटेस्ट से, ठीक है, 2 रेशियोज में तो देख लिया इजी है, अगर 4 रेशियोज गिवन है तब क्या करेंगे, तब भी हम सिमिलर अप्रोच फॉलो करेंगे, वी विल बी फिलिंग द एडजेसेंट वैल्यूज. ठीक है, स्ट्रेट अवे लिखते हैं a is to b is to c is to d is to e. तो a is to b है 2 is to 3, b is to c है 4 is to 5, c is to d है 3 is to 4 एंड d is to e है 5 is to 6. तो क्या करेंगे, अब b के राइट में सारी वैल्यूज में हम 3 फिल कर देंगे. सिमिलरली 4 के लेफ्ट में 4 फिल कर देंगे, 5 के राइट में 5 फिल कर देंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 3 एंड 3 एंड देन
5, 5 and 5. So the value of A will be 2 into 4 into 3 into 5. So that will be 8 into 15, which is 120. Value of B will be 3 into 4, 12 into 15, that is 180. Value of C will be 25 into 9, that is 225. ठीक है. Value of D will be 25 into 400 into 3, 300. And value of E will be 5 into 4, 20 into 18, that is 360. क्या इस रेशियो को भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? डेफिनेटली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 5 से तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, और 15 से हो रहा है इनफैक्ट. तो 15 से डिवाइड कर दो, 15 से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो 8 बच जाएगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा, 15, 20 and 24. So the ratio will be 8:12:15:20:24. So this will be the final answer, the most simplified answer. हाँ, इसका कोई मल्टीपल भी होगा तो भी हमारा आंसर होगा. क्या ये अप्रोच क्लियर है? ठीक है, इज दिस क्लियर? ना यहाँ पे एक चीज हमें करना पड़ा कि हमें स्ट्रेट अवे रेशियो नहीं मिला, हमें रेशियो मिला और फिर उस रेशियो को हमें 15 से डिवाइड करना पड़ा. तो क्या हम इस चीज को और फास्ट कर सकते थे? डेफिनेटली कर सकते थे. कैसे करते वो भी समझ लेते हैं. ठीक है, कि जैसे ही हमने सारी की सारी वैल्यूज जैसे ही यहाँ पे लिख दी थी ए बी सी डी के नीचे, इसके बाद में वी कुड हैव सीन दैट 3 इज कॉमन एवरीवेयर. तो हर जगह से ए बी सी डी सबके नीचे से एक एक 3 को कैंसिल आउट कर देते. ध्यान से करना है, एक एक 3 को कैंसिल आउट कर देते. ठीक है, और भी कुछ कॉमन दिख रहा होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 4 कॉमन होता है, 4 कॉमन नहीं है सब में, सिर्फ 4 प्लेसेस पे कॉमन है, दैट इज वाई 4 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते. बट 5 कॉमन है तो 5 को भी कैंसिल आउट कर देंगे. एंड देन स्ट्रेट अवे हमें वैल्यू है पहला वाला 2 into 4 दैट इज 8. सेकेंड वैल्यू है 3 into 4 दैट इज 12, देन 15, देन 20 एंड देन 24. तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा ऐसे केसेस में. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से पक्का कर लेते हैं अपने लिए. तो A is to B is let us say 1:3, B is to C is 2:5, C is to D is 3:4 and D is to C, D is to E is 5:6. तो क्या आ जाएगा? A is to B is to C is to D is to E का वैल्यू क्या होगा फाइनली? 1:3 लिखा सबसे पहले, देन 2:5, 3:4 एंड लास्टली 5:6. देन 3 के एडजेसेंट में सारी वैल्यूज में राइट वर्ड्स 3 फिल कर देंगे, 2 के लेफ्ट में 2 फिल कर देंगे, 5 के राइट में 5 फिल कर देंगे, 4 के राइट में 4 और 3 के लेफ्ट में 3 एंड देन 5 के लेफ्ट में सारी वैल्यूज में 5 फिल कर देंगे. नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? 3 कॉमन है सब जगह पे, तो 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं. और तो कुछ कॉमन नहीं है. ठीक है, 5 भी कॉमन है तो 5 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. ओके, सो रेशियो आ जाएगा 2:6 to 15 to 20 to 24. So our ratio is 2:6 to 15 to 20 to 24. So this will be our answer. Clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज A is to B is to C is to D is equal to 1/2 is to 1/3 is to 1/4 is to 1/5. यानी कि रेशियोज हमें स्ट्रेट अवे देने के बजाय यहाँ पे फ्रैक्शन में दिए हुए हैं. फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो कैसे करेंगे? अगर हमें फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो अगर तो फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा. तो इन दैट केस यहाँ भी हम अपने रेशियोज को सिंप्लीफाइड करेंगे. और कैसे सिंप्लीफाइड करेंगे कि हमें गिवन है A is to B is to C is to D दैट इज 1/2 is to 1/3 is to 1/4 is to 1/5. ओके, तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि विल बी टेकिंग एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 and 5 and that value will be 5 into 4 20 into 3 60. एलसीएम हमारा 60 आ गया. 60 से सारे के सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दो. सारे रेशियोज को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 60, सो रेशियोज हमारे आ जाएंगे 60/2 विच इज 30, 60/3 इज 20, 60/4 इज 15 एंड 60/5 इज 12. तो फाइनल A is to B is to C is to D का रेशियो आ जाएगा 30 is to 20 is to 15 is to 12. That will be our answer in this case. Is that clear? Okay.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब एक क्वेश्चन करते हैं. अ सम वाज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 1/3:1/5:1/6:1/9. इफ द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ बी एंड डी इज ₹832, तो सम की वैल्यू क्या होगी? टोटल सम जो ए बी सी डी के पास में है उसकी वैल्यू क्या आएगी? रेशियो हमें गिवन है, अगेन फ्रैक्शन में ही गिवन है. तो सबसे पहला काम विल बी चेंजिंग दीज फ्रैक्शंस टू सिंप्लीफाइड फॉर्म. इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे. 1/3:1/5:1/6:1/9. So we'll be taking LCM of 3, 5, 6 and 9, and that value will be 9, 2 are 18, 5 are 90. तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो सारी वैल्यूज को. तो सिंप्लीफाइड रेशियो विल बी 90/3, 30 is to 18 is to 15 is to 10. So this is our ABCD का रेशियो. Now question is saying difference between shares of B and D is ₹832. तो B का शेयर और D के शेयर के बीच का डिफरेंस दैट इज ₹832. B का शेयर है 18 यूनिट्स और D का शेयर है 10 यूनिट्स. तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के बीच का? दैट इज 8 यूनिट्स. एंड दिस 8 यूनिट इज गिवन एज ₹832, which implies कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 104 रुपीज. 832 डिवाइडेड बाई 8, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 104 रुपीज. टोटल अमाउंट पूछा है, टोटल सम कितना आ जाएगा? टोटल सम विल बी 30 प्लस 18 48, 48 प्लस 15 63 प्लस 10 73 units. The total sum is 73 units, and so we'll be multiplying this by 104. 73 into 104. Okay, 73 into 100 आ गया 7300, और 73 into 4 आ गया 280 plus 12 292. So the answer will be 7592. ₹7592 will be our answer. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट इज ₹2820 was to be divided among A, B and C in the ratio of 3:4:5, but by mistake the distribution was made in the ratio 1/3:1/4:1/5. So how much does A gain by this error? बेसिकली रेशियो होना चाहिए था 3:4:5 का, बट गलती से रेशियो क्या हो गया 1/3:1/4:1/5 का. किसी को गेन हुआ होगा, किसी का नुकसान हुआ होगा. तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए का कितना गेन हुआ. हम ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे किसका किसका गेन हुआ है, किसका किसका नुकसान हुआ है इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में. ओके, तो फर्स्ट हमारा फॉर्म आ रहा है ए बी सी का जो रेशियो आ रहा है फर्स्ट केस में दैट इज 3:4:5. एंड टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 5 + 4 दैट इज 9 + 3 12 यूनिट्स. यानी कि अगर उनके पास 12 रुपीज होते तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हम 3:4:5 के रेशियो में. यानी कि ए को 3 रुपीज मिलते, बी को 4 और सी को 5 मिलते. बट 12 रुपीज तो है नहीं, रुपीज 2820 है. दैट इज फर्स्ट थिंग. ठीक है, सेकंड के सिनेरियो में क्या बन रहा है? सेकंड सिनेरियो में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज 1/3:1/4:1/5. तो एलसीएम 3, 4 एंड 5 का क्या हो जाएगा? दैट विल बी ऑलरेडी देख चुके हैं 60 आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो दिस विल बी 20:15:12. होना क्या था? ये था ओरिजिनल, ये होना चाहिए था करेक्ट, ये होना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन. बट डिस्ट्रीब्यूशन किया क्या? एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारा 20:15:12 का. और सम क्या आ रहा है 20 + 15 + 12 दैट इज 47 यूनिट्स. अब पहले वाले केस में हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 12 यूनिट्स और दूसरे वाले केस में आ रहा है 47 यूनिट्स. सबसे पहले दोनों को हम करेंगे इक्वल. सबसे पहला काम दोनों को इक्वल करना पड़ेगा. सो विल मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट रेशियो बाय 47 एंड सेकंड रेशियो बाय 12. तो ए बी सी का इफेक्टिवली रेशियो क्या आ जाएगा? फर्स्ट केस में क्या है 47 मल्टीप्लाई करें सारी वैल्यूज को, 47 × 3 दैट विल बी 120 + 21 141. ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ ए के लिए निकालना है, अगर सिर्फ और सिर्फ ए के लिए निकालना है तो सिर्फ इतने से काम चल जाएगा हमारा. ठीक है, 141. अदरवाइज सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, बट अदरवाइज एग्जाम में सिर्फ इतने से काम चल जाता है हमारा. अब बी के लिए वैल्यू क्या आएगा 47 × 4 दैट इज 188 और सी के लिए वैल्यू आएगा 235. ओके, अच्छा एक बार जैसे तुमने मल्टीप्लाई कर लिया 47 × 3 कर लिया 141 आ गया. अब 141 आने के बाद में 47 को 4 से मल्टीप्लाई करने से बेटर क्या है 141 में ही 47 ऐड कर दो. इज दैट इट? सो क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक बार 47 ऐड करना है, फिर अगेन तुम्हें करना है 5 से मल्टीप्लाई. तो खैर आसान होता है, जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा क्या करोगे, इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 5 बेटर इज यू मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 2. बोथ आर द सेम, बट दिस इज मच ईजियर. 10 से मल्टीप्लाई करने में एक 0 ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करना, 2 से छोटा और क्या है, तो 2 से डिवाइड करना तो आसान है. 1 के बाद सबसे आसान तो 2 से डिवाइड करना है. क्लियर है? ठीक है, अब सिमिलरली हम रेशियो निकालते हैं. एक्चुअल केस में क्या हुआ 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 × 20 इज 240. यानी कि मिलना चाहिए था 141 ए को, बट मिला कितना है 240. तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है. और सेकंड बी का रेशियो क्या है 12 × 15 दैट इज 180.
and for C the ratio is 20:12 which is 144. Now the problem is ये टोटल यूनिट्स हमारा कितना है 47 into 12 है और ये ₹2820 के बराबर है. दिस 47 into 12 यूनिट्स इज इक्वल टू 2820. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सबसे पहले 12 से सिंप्लीफाई करते हैं, 12 से कैंसिल आउट करते हैं. 12 2 24 बचा 42, 12 3 36, 235 आ गया, फिर 5 टाइम्स चला जाएगा विच इंप्लाइज की 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज. कटपुट आगे 5 बचा, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज. और डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है 99 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है. तो 99 यूनिट्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 99 into 5 विच इज 495 रुपीज का डिफरेंस. तो द गेन बाई ए ड्यू टू दिस एरर विल बी 495 रुपीज. क्या ये बात क्लियर है? तो ए का तो हुआ गेन. अब बी और सी के लिए भी देख लेते हैं. बी और सी को क्या फर्क पड़ेगा. इन केस ऑफ बी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8 बट 8 का रिडक्शन हुआ है, 8 का रिडक्शन हुआ है. इन केस ऑफ सी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, कितने का डिफरेंस आया 91 का, 91 का डिफरेंस आया. और क्या ये चीज समझ पा रहे हो या समझनी चाहिए कि अगर 99 का गेन हुआ है ए को तो बी और सी को मिला के लॉस 99 का ही होना चाहिए. Isn't it so? बाकी सेपरेटली निकालना होगा तो 8 यूनिट्स यानी कि 40 रुपीज का लॉस हुआ है बी को और सी को 91 यूनिट्स यानी कि 455 रुपीज का लॉस हुआ है. और यही ए का बेनिफिट होगा. क्या ये बातें समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? तो इन दिस सेशन आई गेस इतना ही रखते हैं हम. और आई बिलीव सेशन में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, रेशियो के कॉन्सेप्ट जो भी डिस्कस किए वो तुमको समझ में आए होंगे और सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, हम इन पे बेस्ड जो और क्वेश्चन है और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और फिर रेशियो के फर्दर कॉन्सेप्ट को समझेंगे. ठीक है, अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है. अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना. और साथ में यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल दैट इज मैथोलॉजिकल. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर.